हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका संभव बैच में एंड लेट्स कंटिन्यू our series related to art and culture, which is a very important section for pre and mains examination, UPSC civil services examination. So far it we have talked about a lot of topics related to this particular section, and today in this section, in this session, we are going to talk about religions and philosophies of ancient India and Middle Ages. So religious development और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स, उस पे हम लोग अपना आज का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट फ्रॉम 5th एंड 6th centuries बिफोर कॉमन era or 26 or 2500 years back. Religious condition of ancient India and Middle Ages as well as philosophical discussion. So even if you talk about religions of Indus Valley or Harappa civilization, which is better referred to as Sindhu Saraswati civilization, and religious picture of that particular period is not yet very clear or evident. So आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिलीजियस कंडीशन था वो बहुत क्लियर हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास नहीं है जहाँ से हमें एक्सप्लेनेशन मिले। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं, जैसे पशुपति सील और इनफैक्ट इमेजेस ऑफ मदर गॉडेसेस, तो अर्दन इमेजेस मिट्टी के, तो वो बहुत क्लियर पिक्चर हमें नहीं दे पाते हैं। तो we take religious condition of ancient India and Middle Ages and philosophical developments mainly from 6th or 5th centuries before common era, 6th or 5th centuries before Christ or before common era. And this particular century, 6th or 5th centuries before common era, had witnessed emergence of different philosophical paths, different philosophical discourses. तो इस समय ना, इस वाले टाइम पे it was a period of great changes. It was a period of great changes, like it was a period of second urbanization, because first urbanization was Indus Valley civilization, second urbanization, और ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ था इसका मोनेटाइजेशन भी हुआ था, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, एंड पंच मार्क्ड कॉइन्स वर स्ट्रक एंड circulated. Punch marked coins were struck and circulated, and those punch mark coins were mainly composed of silver. But from the excavations, we have also recovered copper punch mark coins, and from early Buddhist textbooks, we also get names of those punch mark coins like Pan or Karshapan, Mashak, and Kankadiya. Pan was a silver coin. Mashak was a coin of lesser value, half of pund, and Kankadiye was a copper coin and bearing 1/4 value of a pund और कारशापन। तो सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। ये सेकंड अर्बनाइजेशन मेनली गंगा रिवर सिस्टम में हुआ था, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो हमारा था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इंडस रिवर सिस्टम में था मेनली। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, राइज ऑफ 16 states, and those states were mainly city states called महाजनपदास, राइज ऑफ 16 महाजनपदास। इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था वेट पैडी कल्टीवेशन, रोपनी वाला धान, वेट पैडी कल्टीवेशन
and also increasing use of iron, but more importantly, rise of 63 different sects or religions, rise of 63 unorthodox or heterodox sects, 63। और ये 63 सेक्ट्स और जो इनके टीचर्स आए, इन्होंने वो रास्ता बनाया या वो रास्ता बताया, philosophical discourse, and that philosophical discourse was different from, not completely though, different from Vedic religions and philosophy। तो एक नया रास्ता आया जो वैदिक रास्ते से हट करके था, इसीलिए इसको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स सेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइज ऑफ 63 different types of unorthodox or hetero means different types of, unorthodox means different from Vedic religion and philosophy। तो हमें इस पे फोकस रखना है। तो देखिए, 6th century before common era or before Christ was a period of great changes or upheaval, not only in case of economy or society but also in case of religions and philosophies। तो आप देखिएगा 6th century before common era में दो तरीके का स्कूल ऑफ फिलोसफी था, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल, दो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, दो नॉट 100% डिफरेंट लेकिन फिर भी ज्यादातर डिफरेंट है। तो आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी देखिए, आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी और नास्तिका नास्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो इसका डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लिटरेरी डेवलपमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मिडिल एजेस। तभी मैंने आपको बताया था कि 3600 ईयर्स बैक और 16th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, यहां पर वेदास है, ठीक है। वेदास से होते हुए 2600 ईयर्स बैक और 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, यहां तक होते हुए। तो वेदास वाला पार्ट तो मंत्र वाला पार्ट है, मंत्रास, फिर यज्ञ या सैक्रिफाइसेस वाला पार्ट है, और फिर फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स शुरू होता है, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स शुरू होता है, थिंकिंग पार्ट, ठीक है। और इसी का फिर ये कल्मिनेशन होता है, कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट्स, कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट्स। या आप ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक आने में जो यहां पर कंक्लूसिव पार्ट आया, कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे डेवलपमेंट का, कंक्लूजन क्या निकला। तो जो कंक्लूसिव पार्ट है ना, कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास, वही है कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास। ये प्रीवियस लेक्चर से कोरिलेट होगा, तो आपको प्रीवियस लेक्चर पे अच्छा कमांड रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास, तो अब आप ये जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से कि मंत्र वाला पार्ट वेदास है, यज्ञ वाला पार्ट लिटरेचर में ब्राह्मणा लिटरेचर है, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस का बिगिनिंग
आरण्य का लिटरेचर है, और इसी का कंक्लूसिव पार्ट, एंड पार्ट और कंक्लूसिव पार्ट वो है उपनिषदिक लिटरेचर। उपनिषदिक लिटरेचर, तो उपनिषदिक लिटरेचर ना कंक्लूसिव पार्ट है, ये कंक्लूसिव पार्ट है वेदास का, कंक्लूड हुए यहां पर वेदास। तो इसीलिए अब देखिए उपनिषद को बोला जाता है कि ये वेदांत है, वेदांत, एंड ऑफ द वेदास, वेदांता, वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी मीन्स नॉट द एंड ऑफ द वेदास, वेद नहीं खत्म हो गए, इसका मतलब होता है कि हाथ में क्या आया, मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकल करके आया। तो यहां से जो भी चीजें डेवलप हुई हैं, वेदास से होते हुए ब्राह्मण, और यहां से आरण्यक, और ये लास्ट में आकर चर्निंग, चर्निंग, मंथन। तो जब आप मंथन करते हैं ना, तो बटर ऊपर आता है, फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बटर ऊपर आता है। तो उसी तरह से इस पूरे चर्निंग में जो क्रीम, जो बेस्ट पार्ट निकल के आया, जो बटर निकल के आया, वो उपनिषदिक फिलॉसफी है। और उपनिषदिक फिलॉसफी वाला जो लिटरेरी पार्ट है वो उपनिषदिक लिटरेचर। चूंकि ये एकदम लास्ट में एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में है ना, ये एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो इसीलिए इसको अंत बोलते हैं, अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग। तो वेदों का एक भाग ब्राह्मण है, दूसरा भाग आरण्यक है, और तीसरा भाग है टॉप मोस्ट, ठीक है, वो है उपनिषद। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये लिंक समझना, ये सीक्वेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये वेदांता फिलॉसफी ना, देखिए वेदांता फिलॉसफी डील्स इन फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये वेदांता फिलॉसफी डिस्कस करता है आत्मा, परमात्मा, जगत और मोक्ष। आत्मा, परमात्मा, जगत और मोक्ष जैसे कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में डील करता है। तो ये कठिन था, इट वॉज बिट डिफिकल्ट for a layman, for a common man to have a better understanding of complex उपनिषदिक फिलॉसफी और वेदांता फिलॉसफी। तो ये आम लोगों के लिए नहीं था। फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज वर फॉर द स्कॉलर्स, फॉर प्रीस्ट्स, फॉर स्कॉलर्स, एंड नॉट मेंट फॉर द कॉमनर्स। तो ये आम लोगों के लिए नहीं था, जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, और ये डील करता है कॉम्प्लेक्स चीजों पे। तो ये डील करेगा आत्मा पर। देखिए जो एंड पार्ट है ना उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद के चार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। ये डील करता है द यूनिवर्सल सोल कॉल्ड, ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा, द यूनिवर्सल सोल, द अल्टीमेट रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी। तो परम सत्य तो एक ही है, और वो है ब्रह्म आत्मा, एंड ब्रह्म आत्मा इज द यूनिवर्सल सोल। फिर दूसरा है इंडिविजुअल सोल, द इंडिविजुअल सोल, जीव आत्मा, जीव आत्मा, द इंडिविजुअल सोल।
and Jeev Atma is nothing but manifestation of ब्रह्म आत्मा. एक इंडिविजुअल जीव आत्मा कुछ नहीं है, जीवात्मा कुछ नहीं है. ये कौन है? ये ब्रह्म आत्मा का ही अंश है. लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन आउट ऑफ अ ह्यूज ओशन. तो जैसे समुद्र से एक बूंद पानी निकाल लीजिए, वैसे ही ब्रह्म आत्मा से एक बूंद जीव आत्मा निकल के आ गया है. ठीक है. तो ब्रह्मात्मा, जीवात्मा. तो जीव आत्मा इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म आत्मा. ठीक है. ये डिफरेंट नहीं है, एक ही है, डिफरेंट नहीं है. तो ये दो हो गया. तीसरा फेवरेट सब्जेक्ट मैटर है उपनिषद का द वर्ल्ड. जगत क्या है? सो लाइक जीव आत्मा, जगत इज ऑल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म आत्मा. तो जो जगत है ना, ये है नहीं, है तो है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ब्रह्म आत्मा का ही मैनिफेस्टेशन है. सो an individual soul as well as the world, both these two things are actually the manifestation of same ब्रह्म आत्मा. और फिर एक और सब्जेक्ट मैटर है उपनिषद में, वो है assimilation of जीवात्मा within the ब्रह्मात्मा. assimilation of जीव आत्मा within the ब्रह्म आत्मा. ये जो बूंद समुद्र से निकली वो वापस समुद्र में मिल जाएगी. ठीक है. तो इसी बात को बोलते हैं मोक्ष और साल्वेशन. मुक्ति, मोक्ष और साल्वेशन मिलना. तो ये चार खास तौर पे सब्जेक्ट मैटर्स हैं उपनिषद के. और 108 उपनिषद्स हैं इस तरह के सब्जेक्ट मैटर पे. 108 उपनिषद्स. बट 10 to 12 are of ग्रेट इंपॉर्टेंस. 10-12 उपनिषद बहुत तगड़े हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 108 उपनिषद्स, और ये बोथ इन प्रोज एंड वर्स, गद्य और पद्य दोनों में इन्हें रचा गया. Both in prose and verse, 108, but to 10 to 12 are of great importance, such as Ish Upanishad, Ken Upanishad, Kat, Mundak, मांडुक्य. ऐसे उपनिषद से ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडू, कैत्रे, तेत्रे, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, ऐसे करके बहुत सारे उपनिषद है. 108 है. But not more than 10 to 12 Upanishads are of great importance. Other Upanishads are also very, very important, but 10 to 12 Upanishads are of great importance, dealing with complex questions, and they're very logical and rational responses or answers. तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रेशनल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल. साइंस की बात नहीं है, ये साइंस नहीं है, ये लॉजिक और रेशनैलिटी है. ठीक है ना, लॉजिक और रेशनैलिटी होता है. तो देखिए, जैसे मैं आपको और बताता हूं. ब्रह्मात्मा, ठीक है,
ब्रह्मात्मा, the universal soul, the the ultimate reality. ठीक है, the ultimate reality. Then all of us, we are जीव आत्मा, and जीव आत्मा को individual soul, जीव आत्मा, the individual soul. And what is a जीव आत्मा? A जीव आत्मा is the manifestation of Brahmatma. जीवात्मा is the manifestation of ब्रह्म इसी का रूप है. Okay. तो जीव आत्मा is not different from ब्रह्मात्मा. जीवात्मा is not different from ब्रह्मात्मा, मतलब एक ही है. डिफरेंट का मतलब एक ही है. तो नॉन डुअलिटी है, दोनों दो नहीं है, दोनों एक है. नॉन डुअलिटी और नॉन डुअलिज्म. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे फाइनली एसिमिलेट होना है, वापस जाना है जहां से ये आया है. तो जीव आत्मा is the manifestation of Brahma Atma, and only Brahma Atma is the ultimate reality, and Jiva Atma is the manifestation of same Brahma Atma. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ये नॉन डुअलिटी पे वर्क करता है. नॉन डुअलिटी ऑफ ब्रह्मात्मा एंड जीव आत्मा. अब प्रॉब्लम क्या है इस जीव आत्मा के साथ कि ये बेचारा जीव आत्मा उलझ गया है जगत में. और ये जगत भी क्या है? ये जगत भी मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म आत्मा ही है. तो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं ना, जगत मिथ्या है, सत्य और असत्य से परे जगत मिथ्या है. तो अब ये जीव आत्मा जो है ना, ये जगत में है, उलझ गया है एक प्रॉब्लम में. ये उलझ गया है बर्थ और रीबर्थ की प्रॉब्लम में. ठीक है, ये बर्थ और रीबर्थ में जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म में फंस गया है. तो अब ऐसे तो ये बूंद जो समुद्र से निकली वो वापस समुद्र में जा ही नहीं पाएगी जब तक कि ये साइकिल को आप ब्रेक ना कर दें. तो बर्थ एंड रीबर्थ, एंड इन ऑर्डर टू get Jiva Atma assimilated within the Brahma Atma, we need to break this cycle of birth and rebirth. और इसी को तोड़ना होगा. तो जब ये टूट जाएगा ना, तो इसी को बोलेंगे मोक्ष. तो ये अगर ये साइकिल टूट गया बर्थ और रीबर्थ का, तो एसिमिलेशन का ही इसी को बोलते हैं मोक्ष, मुक्ति मिल जाएगी. और साल्वेशन, मोक्षा और साल्वेशन, मोक्ष. और इसके 3 रास्ते बताए गए. मोक्ष, वेज ऑफ अटेनिंग मोक्षा, वेज ऑफ अटेनिंग मोक्षा. ज्ञान मार्ग, ज्ञान पे फोकस करना. कर्म मार्ग,
और तीसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग पे फोकस किया गया है। और सबसे ज्यादा फोकस ज्ञान, वो फोनेटिक्स में देखिए जिनान लिखा हुआ है, जियान नहीं लिखा हुआ है, जियान सुनियो वाला जियान नहीं है, नोबिता वाला जिनान पढ़ते ज्ञान है। फोनेटिक्स में ये आता है, इंग्लिश फोनेटिक्स में। तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है उपनिषदों में, ज्ञान मार्ग पे। तो उपनिषद ना इस तरह के सब्जेक्ट मैटर को डील करता है, ब्रह्मात्मा, जीवात्मा, जगत और मोक्ष जैसे कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस एंड देयर लॉजिकल लॉजिकल रिस्पॉन्सेस और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। तो ये पूरा ये फिलोसॉफी इसी को बोलते हैं ना, लॉजिक और रेशनैलिटी पे बेस्ड होता है। एंड दिस फिलोसॉफी हैज टू डू नथिंग विथ योर साइंस। साइंस क्या ना, लेबोरेटरी में उसको प्रूफ चाहिए होता है, और यहाँ लेबोरेटरी वाला प्रूफ नहीं होता है, लॉजिक वाला प्रूफ होता है। तो ठीक है ना, तो ये लॉजिक है, तो कई लोग इस लॉजिक को मानेंगे और कई लोग इस लॉजिक को नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे वो हेटेरोडॉक्स में आएंगे या अनऑर्थोडॉक्स में आएंगे, जैसे बुद्धा और महावीरा। और जो मानेंगे वो वैदिक फिलोसफी वाले लोग होंगे, आस्तिका स्कूल। तो के सब इस पूरे फिलोसफी का जो ओरिजिन है ना, वो ओरिजिन ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से शुरू करके मामला खत्म होता है उपनिषद पे, है ना। जैसे ऋग्वेद में एक, ऋग्वेद के आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 10 मंडल्स हैं, 10 मंडल्स, 10 बुक्स। और ऋग्वेदा में जो सेवेंथ बुक में एक मंत्र है डेडिकेटेड टू रुद्र, रुद्र गॉड के लिए है। और ये पढ़ा जाता है ऐसे, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ठीक है, मुझे बहुत सटीक तो नहीं, अब मैं प्रीस्ट नहीं हूं, तो बहुत सटीकता से, बहुत प्योरिटी से तो नहीं चैंट कर सकता हूं, कोशिश की जा सकती है, कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षमामृतात्। तो इसका अर्थ ये है कि हे उस 3 आंखों वाले देवता को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। नेक्स्ट लाइन है उर्वा रुक मीव बंधनान। जैसे क्यूकम्बर, खीरा, ककड़ी अपने डंठल से लगा होता है, और जब वो उसकी राइपनिंग, जब वो पक जाता है तो वो डिटैच कर जाता है। उसी तरह से हे रुद्र, हमें भी डिटैच कर दो अपने डंठल से। तो हमारा डंठल क्या है? हमारा डंठल है birth and rebirth, birth and rebirth, birth and rebirth, and we have to get ourselves free from this cycle of birth and rebirth. तो यहाँ रुद्र देवता से कामना की गई है, उनसे कहा जा रहा है कि हे रुद्र, हे त्र्यंबकम, 3 आंखों वाले देवता, हमें इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से, इस विशेष साइकिल से मुक्ति दे दो। तो यहाँ पर जो मोक्ष है ना, इस मंत्र में जो मोक्ष का डिमांड किया गया, इसी का देखिए एकदम एंड पार्ट जो आ रहा है ना, कंक्लूसिव पार्ट, इसी का आगे का डेवलपमेंट है। कंक्लूसिव पार्ट जो है ना, वो उपनिषद में मिलेगा आपको, कंक्लूसिव पार्ट उपनिषद। तो यहां मोक्ष, हल्का फुल्का सा मोक्ष का डिस्कशन किया गया, और यहां पे फुल डिस्कशन, फुल फ्लेज्ड डिस्कशन। तो मोक्ष डेडिकेटेड टू रुद्रा
डिमांडिंग मोक्षा, इसी को महामृत्युंजय मंत्र भी बोलते हैं ना। तो रुद्र क्या बोला गया, रुद्र मंत्र बोलते हैं। रुद्र मंत्र आमतौर पे इसी को महामृत्युंजय मंत्र बोला गया है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कहते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसी का आगे जो डेवलपमेंट है ना, ये उपनिषद्स में हमें नजर आता है। जैसे देखिए, बृहद आरण्यकोपनिषद। तो बृहद आरण्यकोपनिषद में सोल पे डिस्कशन है, और इसमें बोलते हैं कि सोल ट्रांस माइग्रेट करती है, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर वन। जैसे हम रोज कपड़े बदल लेते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदल लेती है। तो हम रोज कपड़े बदलते हैं, कुछ लोग 2-3 दिन पे बदलते हैं, ठीक है, हम काम चला लेते हैं। तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदल लिया करती है ना। और एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांस माइग्रेट हो जाती है, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर वन। और इन्हीं चीजों को ना आगे फिर डिस्कस किया जाता है। इसका और आगे का डेवलपमेंट आपको मिलेगा एक दूसरी टेक्स्ट बुक में, श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता में फिर इसी का आगे का डेवलपमेंट मिलेगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बैटल फील्ड में बताते हैं, समझाते हैं कि अर्जुन परेशान मत हो, जिन्हें तुम सोच रहे हो कि मार दोगे, वो तो मरेंगे ही नहीं, क्योंकि सिर्फ शरीर जाएगा, आत्मा ना मरती है, ना बूढ़ी होती है, ना उसे आग में जलाया जा सकता है। तुम्हारे बाणों से निकलती हुई आग, तुम्हारे तीरों से निकलती हुई आग आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि। हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारे बाण नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि, तुम्हारे बाण, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र आत्मा को कुछ नहीं छेड़ सकते हैं, वो छेद सकते हैं, भेद सकते हैं। नैनन दहति पावक, नहीं आत्मा को अग्नि, पावक मतलब अग्नि, आग, अग्नि जला सकती है। ये अजर है और ये अमर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऋग्वेद से होते हुए उपनिषद और उपनिषद से होते हुए श्रीमद् भागवत गीता। और आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता which is a part of भीष्म पर्वन of महाभारत। महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व का एक पार्ट है श्रीमद् भागवत गीता। बहुत पवित्र, बहुत फेमस, बहुत जबरदस्त टेक्स्ट बुक है। तो ये सीक्वेंस बनता है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद से उपनिषद और उपनिषद से होते हुए श्रीमद् भागवत गीता। ये है ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये पूरा जो स्कूल है ना, मतलब स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ये पूरा स्कूल ऑफ फिलॉसफी ये कहलाता है, मेनली जो ये कहलाता है ना, ये आस्तिका, ये वेदों वाला जो ऋग्वेद और ऋग्वैदिक और लिटरवैदिक पीरियड में, वो आस्तिका स्कूल, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं उसको, ऑर्थोडॉक्स। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इससे डिनाई करते हैं, ये अलग एक अलग रास्ता लेते हैं, उन्हें नास्तिका स्कूल बोला गया। तो आस्तिका और नास्तिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी, तो इंडियन रिलीजन्स और फिलॉसफीज में, एंशिएंट इंडिया में दो ब्रांच बन जाती है। जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे,
वेदास से होते हुए उपनिषद, वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद। तो आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ना, ये आस्तिका नास्तिका, ये यूं मत समझिएगा कि ये गॉड को मानने या ना मानने को लेकर के। सुना होता ना कि आस्तिक और नास्तिक कौन होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि आस्तिक वो है जो गॉड में फेथ रखता है और नास्तिक वो है जो गॉड को मानता ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो इंग्लिश वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं और ये संस्कृत वर्ड्स हैं, इनका सेम मीनिंग नहीं होता वही, है ना। तो इंग्लिश में अलग टेक्निकल टर्म्स हैं और संस्कृत में अलग है। जब आप संस्कृत में बोलते हैं ना कि आस्तिका और नास्तिका, तो इसका गॉड से लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थीस्ट्स एंड अथीस्ट्स, तो थीस्ट वो है, थीस्टिक पर्सन वो होता है जो गॉड को मानता है, गॉड के एग्जिस्टेंस को मानता है, और अथीस्ट वो होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर देता है। तो वो थीस्ट और अथीस्ट है, ये उसका ट्रांसलेशन नहीं है आस्तिका और नास्तिका, ठीक है ना। ये गॉड को लेकर के नहीं है, ये वेदास की सुप्रीमेसी को लेकर के है कि जो लोग वेदास को इनफैलिएबल और सुप्रीम मानेंगे कि वेदास से हट करके, वेदास से परे कुछ भी नहीं है, जो भी है वो वेदास से ही निकल के आ रहा है और वेदास से हट के कुछ भी नहीं है, तो वो आस्तिका स्कूल में शामिल किए जाते हैं, वो आस्तिका स्कूल हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी फिलोसोफर्स में जिन्होंने बोला कि जरूरी तो नहीं है कि वेदास में जो बताया गया वही एक रास्ता है, अलग रास्ते भी हो सकते हैं। तो दोज philosophers who believed in the supremacy and infallibility, amog, achuk, infallibility of the Vedas, and they also consider Vedas as the primary source of knowledge. तो वो आस्तिका स्कूल में गए, है ना। और ये भी है, ठीक है, कि ज्यादातर आस्तिका स्कूल के लोग गॉड को मानेंगे, क्योंकि अगर आप ऋग्वेद को मानेंगे तो गॉड, ऋग्वेद में तो देवी देवता हैं ही, तो देवी देवता को मान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रांचिंग होगी, कुछ ऐसे भी इसमें भी आस्तिका में भी कुछ लोग होंगे जो गॉड को नहीं मानेंगे। तो ज्यादातर आस्तिका स्कूल में गॉड को मानते हैं, कुछ लोग गॉड को नहीं भी मानते हैं। तो लेकिन वो एक चीज कॉमन रहेगी, गॉड को मानिए चाहे मत मानिए, देवी देवताओं को मानिए चाहे मत मानिए, एक चीज आपको मानना ही पड़ेगा कि वेदास जो हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, एंड वेदास आर द सुप्रीम एंड ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। वेदास से परे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो नास्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी है ना, ये रिजेक्ट कर देता है। तो नास्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी रिजेक्टेड द वेदास एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, and either they had accepted the existence of gods and goddesses or they had altogether rejected। तो या फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी ना करके बीच में, ठीक है कि पता नहीं यार, आपको जो समझना समझो, मुझे नहीं पता गॉड है कि गॉड नहीं है, वो इस डिस्कशन में गए ही नहीं। तो नास्तिका स्कूल में भी कुछ फिलोसोफर्स या ज्यादातर फिलोसोफर्स गॉड्स गॉडेसेस को नहीं माने, लेकिन कुछ लोग मानने और ना मानने के चक्कर में पड़े ही नहीं। उन्होंने बोला पता नहीं, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। जैसे गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्ध को बोला गया कि गॉड है क्या, सर आप क्या कहते हैं गॉड है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गॉड है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गॉड नहीं है। मतलब एग्नोस्टिक, संशय, संशय एग्नोस्टिक है कि नहीं है, हमें भाई इस झंझट में मत पड़ो, हमें जाना ही नहीं है। सोल है कि नहीं है, जब बुद्ध से बोला गया कि सोल है क्या, पूछा गया कि सोल है महात्मा, आत्मा होती है, तो बुद्ध स्माइल्ड एंड ही रिमेन साइलेंट। ठीक है, तो आंसर ही नहीं। तो ये कुछ लोग नास्तिका स्कूल में इस सब झमेले में पड़े ही नहीं, सब झंझट में पड़े ही नहीं कि गॉड होता है कि नहीं होता है, आत्मा होती है कि नहीं होती है। एक रास्ता बताया कि कैसे जिंदगी जिया जाता है। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आस्तिका एंड नास्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी? मेन डिफरेंस इज रिलेटेड टू infallibility of the Vedas।
like all those philosophers who considered Vedas are infallible, और ये वेदास को बोला गया कि ये मनुष्यों का नहीं है, ये देववाणी है, ईश्वरीय ईश्वरीय वाणी है, देववाणी है। तो ये देवी देवताओं ने बनाया है, इसलिए ये इनफैलिएबल, इसीलिए ये इनफैलिएबल और प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। इस मुद्दे को है, और नास्तिका स्कूल में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड द वेदास एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड either rejected the gods and goddesses or they remained agnostic। तो ये दो ब्रांच बनती है आस्तिका और नास्तिका की। और देखिए, जो आस्तिका स्कूल है, यहां पे वापस आते हैं, उपनिषद। तो वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद, और उसमें जो उपनिषद क्या टाइम, और ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल बोला जाता है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल, या मतलब परंपरागत जो चला आ रहा था बहुत लंबे टाइम से, 1000 पिछले 1000 साल से, और इससे हट के जो लोग आएंगे, इसको चैलेंज करेंगे या इससे हट के रास्ता अपनाएंगे, वो अगर ये ऑर्थोडॉक्स बोला जाएगा तो नए रास्ते को अनऑर्थोडॉक्स। और चूंकि अनऑर्थोडॉक्स रास्ते पे बहुत सारे फिलोसोफर्स आए, नो लेस देन 62 और 63 फिलोसोफर्स, तो वो हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसफीज आ गया ना, तो उसको हेट्रोडॉक्स भी बोलते हैं। तो बुद्धा और महावीरा अनऑर्थोडॉक्स या हेट्रोडॉक्स में जाते हैं, और आस्तिका स्कूल में मोक्ष के 6 रास्ते बताए गए, 6 डिफरेंट ways of attaining moksha or salvation। 6 different ways of attaining moksha और salvation। तो ये इसी को बोलते हैं षड। षड मीन 6 दर्शन, फिलोसफी, 6 different ways of attaining salvation और freedom from the cycle of birth and rebirth। तो उसमें जैसे न्याय, which was propounded by गौतम ऋषि around 5th century before common era, वैशेषिका कणाद उलूक 6th century before common era, सांख्य कपिल मुनि, योगा पातंजलि 2nd century before common era, पूर्व मीमांसा जैमिनी 4th century before common era, एंड उत्तर मीमांसा और वेदांता, ये उपनिषद पे होते हुए श्रीमद् भागवत गीता एंड ब्रह्म सूत्र ऑफ वादरायण। तो ये 6 अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप मोक्ष पा सकते हैं, ठीक है। बस इसमें आपको ये याद रखना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 वाले क्वेश्चंस में ये काम आ जाएगा लिस्टिंग। और जो उपनिषद है ना, उसको वेदांता भी बोलते हैं। यही जो है वेदांता, ये उपनिषदिक थॉट्स को फॉलो करता है पूरी तरह से। उत्तर मीमांसा और वेदांता, उत्तर मीमांसा और वेदांता। तो षड दर्शन में न्याय वैशेषिका, सांख्य योगा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा और वेदांता है ना, ये जो वेदांता है ये कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास है, उपनिषद या वेदांता। तो वेदांता में भी ना 3 मेन स्कूल है, इसको ध्यान दीजिएगा। सब देयर आर 3 मेनली 3 सब स्कूल्स ऑफ वेदांता। अद्वैता वेदांता, विशिष्ट अद्वैता एंड द्वैता वेदांता। तो अद्वैता वेदांता ऑफ शंकराचार्य अराउंड 8th 9th सेंचुरीज कॉमन, 1200 साल पहले, और इनके बाद
विशिष्ट अद्वैता वेदांता, विशिष्ट अद्वैता वेदांता propounded by Ramanujacharya and Dvaita Vedanta of Madhvacharya, द्वैता वेदांता ऑफ मध्वाचार्य। तो ये तीन मेन स्कूल्स हैं फिलॉसफी के। अद्वैता वेदांता, इसमें वेदांता में तीन सब स्कूल्स हैं, अद्वैता वेदांता, विशिष्ट अद्वैता वेदांता एंड द्वैता वेदांता। इंटरेस्टिंग बात देखिए ये है कि जो अद्वैता वेदांता फिलोसफी, अद्वैता वेदांता, ये शंकराचार्य ने प्रोपाउंड किया और एग्जैक्टली ये उपनिषद से मैच करता। तो सेम उपनिषदिक फिलोसफी वाज रीस्टैब्लिश्ड और strengthened by the great philosopher Shankaracharya around or possibly at the end of 8th century or in the beginning of 9th century। तो वो 8th century खत्म हो रहा है और 9th century कॉमन एरा के शुरुआती दौर में शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्य ने बोला कि नॉन डुअलिटी है, नॉन डुअलिटी या नॉन डुअलिटी ऑफ ब्रह्मात्मा एंड जीव आत्मा, नॉन डुअलिटी ऑफ ब्रह्मात्मा जीव आत्मा। अ मीन्स नो, नॉट, नहीं, अद्वैता, दो, ठीक है। तो शंकराचार्य ने बोला कि ब्रह्मात्मा द यूनिवर्सल सोल एंड जीवात्मा द इंडिविजुअल सोल, दीज टू थिंग्स आर नॉट डिफरेंट बट सेम, सेम एक ही है। अब देखिए जैसे इसको ऐसा समझते हैं कि एक बर्तन है, मिट्टी का एक बर्तन है, ठीक है? मिट्टी का एक पॉट है, बर्तन है, और ये पॉट है हमारा शरीर, बॉडी, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। और देयर इज द स्पेस इनसाइड द पॉट, और इसको आप मानते हैं जीवात्मा। देयर इज द स्पेस इनसाइड द पॉट कंसिडर एज जीवात्मा, और इस पॉट के बाहर अनंत स्पेस है ना। तो स्पेस आउटसाइड द पॉट ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है ना। स्पेस आउटसाइड द, हमारे शरीर के बाहर जो वे सब दूर दूर तक अनंत है। तो स्पेस आउटसाइड द पॉट ये अनंत है। यही स्पेस आउटसाइड द पॉट जो है ना, वो क्या है, ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्मात्मा, स्पेस आउटसाइड द पॉट, और ये जीवात्मा है। जैसे ही ये पॉट टूटेगा, मतलब शरीर खत्म होगा, खत्म, शरीर गया, जैसे ही शरीर खत्म होगा, स्पेस इनसाइड द पॉट becomes the space outside the pot and space becomes one, space becomes one, एक ही हो जाता है, ये अलग रह नहीं जाएगा, ये इसी में समा जाएगा। तो तो अलग ही नहीं था, एक ही था, एक ही था। तत्वम असि, आई एम यू, आई एम यू, मैं
तुम हूं, मैं तुम हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम यू, तत्त्वम असि, मैं ही तुम हूं, मैं ही तुम हूं। तो मतलब मैं जीवात्मा, मैं कुछ हूं ही नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्मात्मा का अंश हूं। और बस ये शरीर बीच में है, जिस दिन शरीर खत्म हुआ जीवात्मा ब्रह्मात्मा में समा जाता है, विलीन हो जाता है। यही यही मोक्ष, यही मोक्ष है। तो इसमें नॉन डुअलिटी है, नॉन डुअलिटी है। और इसी को बोलते हैं अद्वैता वेदांता ऑफ शंकराचार्य, अद्वैता वेदांता फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य। तो उपनिषदिक फिलॉसफी को एक बार फिर से शंकराचार्य ने मजबूती से रखा, ठीक है, अद्वैता वेदांता के फॉर्म में। और शंकराचार्य केरल के थे, कलाडी, कलाडी विलेज के, कलाडी विलेज ऑफ केरला, and he was a Nambudiri Brahmins. So and was a 9th century great philosopher who belonged to Kaladi village of Kerala. And in order to revive the Hinduism, he established four mathas or Vaishnavite monasteries in four cardinal directions, like Jyotirmath in the north at Badrinath, Sringeri Sharda Peetham at Sringeri, Sharda Peetham at Dwarka, एंड गोवर्धन पीठ एट पुरी। ठीक है, तो यहां के जो हाई प्रीस्ट होते हैं, है ना, या चीफ हाई प्रीस्ट, आज अभी की बात बता रहा हूं, जो हाई प्रीस्ट होते हैं ना, इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं? शंकराचार्य, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेम्स। तो उनकी पदवी शंकराचार्य कहलाती है। तो इन मठों के जो सबसे बड़े आचार्य लोग होते हैं वो यही कहलाते हैं, शंकराचार्य कहलाते हैं। जबकि जो पहले शंकराचार्य थे, हम इन्हें कहते हैं जगत गुरु आदि शंकर, आदि शंकर, आदि शंकर या आदि शंकराचार्य। और इसी वजह से जो जो पीठ होते हैं, इनके हाई प्रीस्ट या चीफ प्रीस्ट लोगों को शंकराचार्य बोल दिया जाता है, कि नाम चाहे जो हो वो कहलाएंगे शंकराचार्य ही। और अब देखिए, शंकराचार्य की फिलॉसफी में ब्रह्म आत्मा, ओनली ब्रह्म आत्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड जीव आत्मा इज नथिंग। ठीक है, जीव आत्मा नहीं है। और शंकर का पूरा जोर किस पे है? शंकर का पूरा जोर है मोक्ष लेने पर, मोक्ष पे पूरा का पूरा जोर लगा दिया, मोक्ष पे, ब्रह्मात्मा। और ये कह रहे हैं शंकरा कि ब्रह्म आत्मा इज नो डिफरेंट फ्रॉम जीव या ऐसे, जीव आत्मा इज नो डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म आत्मा। जीव आत्मा इज नथिंग, जीव आत्मा इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ, जीव आत्मा इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म आत्मा। ठीक है, और फिर इनकी फिलॉसफी को थोड़ा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके आगे बढ़ाया दूसरे फिलोसोफर ने इनके बाद के, रामानुज, रामानुज। तो रामानुज ने बोला कि सेम शंकराचार्य की ही फिलॉसफी रहेगी, वही फिलॉसफी है, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहां पर जो फिलॉसफी रामानुजाचार्य ने दिया, इन्होंने बोला कि ये सब ठीक है, लेकिन मुझे मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए, जैसे इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, ब्रह्मात्मा, जीवात्मा। ठीक है, शंकर ने बोला कि ब्रह्म आत्मा इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ जीवात्मा एंड हेंस इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू गेट एसिमिलेटेड, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। तो और शंकर ने बोला कि इस पूरे में नॉन डुअलिटी है, ये अलग है ही नहीं,
जीवात्मा, नॉन डुअलिटी है, और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव असिमिलेशन है या मोक्ष है। जीवात्मा ब्रह्मात्मा में विलीन हो जाना चाहेगा। लेकिन रामानुजाचार्य ने इसमें एक चीज थोड़ी स्पेसिफिकली जोड़ दी, तो इसी को इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नॉन डुअलिटी, विशिष्ट अद्वैता वेदांता, विशिष्ट अद्वैता वेदांता, स्पेसिफिक नॉन डुअलिटी। और वो ये था कि रामानुजाचार्य ये कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। शंकर ने पूरी ताकत लगा दी मोक्ष पे, रामानुज ने बोला नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अगर मोक्ष मिल जाएगा तो मैं तो विलीन हो जाऊंगा, तो फिर मैं भगवान की भक्ति कैसे करूंगा, मैं भगवान विष्णु की भक्ति कैसे करूंगा, मुझे भगवान विष्णु के पास रहना है, उनके चरणों में पड़े रहना है, उनके श्री चरणों में रहना है। और अगर मोक्ष मिल गया तो मैं भगवान विष्णु के श्री चरणों में नहीं रह पाऊंगा। तो रामानुजाचार्य instead of moksha emphasized more on doing bhakti of Lord विष्णु। तो वो भक्ति पे ज्यादा गए, ज्ञान मार्ग पे कम गए, भक्ति मार्ग पे ज्यादा गए। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि मुझे मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं, एम्फसाइज मोर ऑन डूइंग भक्ति ऑफ लॉर्ड विष्णु, बर्थ आफ्टर बर्थ। ठीक है, कि हर जन्म में मुझे भगवान विष्णु की भक्ति करनी है, इसीलिए एंड और इसी प्लस देखिए एंड हेंस ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मोक्षा, and hence he was not interested in getting moksha और salvation। उनको मोक्ष नहीं चाहिए था। ठीक है, he was not interested in getting मोक्ष। तो यही बात रामानुज को किससे अलग कर दे रहा है या किससे स्पेसिफिक कर दे रहा है, शंकराचार्य से स्पेसिफिक कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो स्पेसिफिक, बाकी फिलॉसफी वही है, नॉन डुअलिटी ही है, तो स्पेसिफिक और बिलीव वही है, शंकराचार्य को ही है। तो रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य की फिलॉसफी को चैलेंज नहीं किया, बोला सब कुछ ठीक है, बस मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे भक्ति। तो ये भक्ति मार्ग पे इनका इंक्लाइनेशन भक्ति मार्ग पे था। और शंकर पूरी तरह से हाईली लॉजिकल और रेशनल फिलोसोफर थे, भक्ति पे जरा सा भी नहीं। इवन भक्ति को चैलेंज, भक्ति यूं समझ लीजिए कि भक्ति की राह में सबसे बड़ा चैलेंज शंकराचार्य ही बन गए थे खुद ही, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल और रेशनल फिलोसोफर थे। तो वो भक्ति को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए रामानुजाचार्य ने भक्ति पे थोड़ा सा जोर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से मामला आइडियलिस्टिक हो जाए। तो शंकर वॉज मोर एन आइडियलिस्टिक फिलोसोफर। तो ये आइडियलिस्टिक फिलॉसफी था बहुत ज्यादा शंकर का, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी। तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को थोड़ा सा चेंज करते हुए ये कहां झुकाया इन्होंने, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लाए रामानुजाचार्य, भक्ति के एस्पेक्ट पे लाए। लेकिन जो तीसरे फिलॉसफर इनके बाद आए ना रामानुजाचार्य के बाद, वो थे मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य ने बोला ना, मध्वाचार्य ने बोला कि देखिए भाई, ब्रह्म ब्रह्म है, मैं हूं, एक नहीं है दोनों। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस,
there is a fundamental difference between Brahmatma and Jiva Atma. Duality of Brahmatma and Jiva Atma. चैलेंज कर दिया ना इन्होंने, शंकर की फिलॉसफी को चैलेंज किया मध्वा ने। शंकर ने बोला नॉन डुअलिटी ऑफ ब्रह्मात्मा एंड जीवात्मा, और मध्वाचार्य ने बोला कि डुअलिटी ऑफ ब्रह्मात्मा एंड जीवात्मा, ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा है और जीवात्मा जीवात्मा है। सो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मात्मा एंड जीव आत्मा। तो एकदम से चैलेंज कर दिया ब्रह्मात्मा एंड जीवात्मा। ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन है, ये एसिमिलेशन है, ये सब मैं मान रहा हूं, वो बेसिक फिलॉसफी मान रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं मध्वाचार्य कि ये ठीक है, मैनिफेस्टेशन भी है और एसिमिलेशन भी चाहिए, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस, डुअलिटी ऑफ ब्रह्मात्मा एंड जीवात्मा, डुअलिटी ऑफ ब्रह्मात्मा एंड जीव आत्मा। तो इसीलिए ये फिलॉसफी कहलाया द्वैता। अब बेसिक तो वेदांता से लिया गया है, द्वैता वेदांता, ये है ना, द्वैता वेदांता। तो तीन वेदांता फिलॉसफी में तीन बेसिक फिलॉसफी है। अद्वैता वेदांता ऑफ शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैता वेदांता ऑफ रामानुजाचार्य, एंड द्वैता वेदांता ऑफ मध्वाचार्य। ये तीन मेन सब स्कूल्स हैं वेदांता के, है ना। और फिर अब आगे जब बढ़ते हैं ना, तो हम ये पाते हैं मॉडर्न इंडिया में वेदांता फिलॉसफी इन मॉडर्न इंडिया। तो इसको वेदांता फिलॉसफी को फिर मॉडर्न इंडिया में रिवाइवल, इसका फिर से रिवाइवल और इसको पॉपुलर बनाया ब्रह्म, देखिए नाम भी लगा हुआ है, ब्रह्म समाज ने वेदांता फिलॉसफी को रिस्टैब्लिश किया। तो ब्रह्म समाज वाज established by राजा राम मोहन रॉय in 1828 to purify the Hinduism, which means he insisted more on Upanishadic thoughts instead of bhakti, idol worship and polytheism. तो इन्होंने उसी फिलॉसफी को, शंकराचार्य वाली फिलॉसफी को ही आगे बढ़ाया। तो ब्रह्म समाज वाज established by राम मोहन रॉय in 1828 to purify Hinduism and to promote monotheism instead of polytheism। इसका क्या मतलब हुआ देखिएगा, मैं आपको थोड़ा इसको और समझाता हूं। 3600 ईयर्स बैक चलते हैं वापस ऋग्वेद पे, या 16th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। यहां पे है वर्शिप ऑफ नेचर, तो नेचर में तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो ये हो जाएगा पॉलीथी। और यहां से ट्रेवल करते करते जब हम उपनिषद तक आते हैं 2600 ईयर्स बैक, और मेनली 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, जब हम उपनिषदिक पीरियड में आते हैं, तो यहां पर वर्शिप ऑफ नेचर कम हो जाता है और अपने अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्ट करना होता है। तो इसी बात को बोलते हैं पर्वत। पर्वत का मतलब होता है आउटवर्ड लुकिंग,
फिनोमेना, आउटवर्ड लुकिंग फिनोमेना। और ये यहां तक आते आते ये परमाणु एटॉमिक लेवल पे, मतलब अंदर झांक के देखना, तो ये पर्वत से परमाणु की तरफ, परमाणु का मतलब हो गया इनवर्ड लुकिंग फिनोमेना। तो आउटवर्ड लुकिंग फिनोमेना जो है ना, ये पर्वत ईवे दास है, और इनवर्ड लुकिंग फिनोमेना ये है उपनिषद्स। उपनिषद्स, आउटवर्ड लुकिंग फिनोमेना एंड इनवर्ड लुकिंग फिनोमेना। तो पर्वत से परमाणु की तरफ, या ऐसे भी कह सकते हैं आप इसे कि पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म तरफ। तो उपनिषद पॉलीथीज्म को पैट्रोनाइज नहीं करता है, उपनिषद मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद को इंसिस्ट करता है। ये मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद है ये। जैसे उपनिषद में आता है एकम सद विप्र बहुधा वदंती। एकम सद विप्र बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, वो तो ब्रह्म है, सत्य एक है और वो ब्रह्म है, और लोग उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एक एकम सद विप्र बहुधा वदंती। तो आप ये देखिए कि पॉलीथीज्म से ये किधर की तरफ मूव हुआ है, मोनोथीज्म की तरफ मूव किया गया है, फ्रॉम पॉलीथीज्म टू मोनोथीज्म। लेकिन ये मोनोथिस्टिक फिलॉसफी ना फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, उपनिषद थोड़े जटिल थे, कॉम्प्लेक्स थे, आत्मा परमात्मा ब्रह्म आत्मा जीवात्मा, कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को डील किया गया है। तो इसको आगे चल के ना सिंप्लीफाई किया गया। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या किया गया इसके बाद। तो जो 2600 तक आए ना, 2600 ईयर्स बैक, तो जो उपनिषद तक आए, उपनिषद, तो उपनिषद पे आने पर फिर मामला मोनोथीज्म पे जाने लगा। तो लेकिन ये पॉपुलर नहीं हुआ, तो फिर से 2200 ईयर्स बैक, मतलब ये हो गया सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा एंड ऑनवर्ड्स। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं ना, तो फिर से मामला चला जाएगा पॉलीथीज्म पे वापस। तो फ्रॉम पॉलीथीज्म टू मोनोथीज्म एंड अगेन फ्रॉम मोनोथीज्म टू पॉलीथीज्म। और ये जो पॉलीथीज्म आएगा ना, ये नया एक दूसरा फॉर्म होगा, इसको हम बोलेंगे पौराणिक हिंदुइज्म। पुराणों पे इसका लिटरेचर अलग होगा, तो ये पौराणिक लिटरेचर पे बेस्ड होगा। तो फिर हिंदुइज्म, या कह लीजिए सनातन, ये मोनोथीज्म से ट्रेवल करता हुआ एक बार फिर से इधर आ गया, पॉलीथीज्म पे आ गया। तो पॉलीथीज्म, वेदा पॉलीथीज्म, मेनली वेदास पॉलीथीज्म है, उपनिषद मोनोथीज्म, और पुराण फिर से पॉलीथीज्म है। और पुराण आसान है, ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी, कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं इसमें। और यहां पर पुराणों में आते आते फिलॉसफी छोड़ के चेंज किया गया स्टोरी
स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आता है। स्टोरी, कहानी बोल करके समझाना फिलॉसफी को, तो स्टोरी टेलिंग फॉर्म, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिंपलर वर्जन ऑफ वेद, सिंपलर वर्जन ऑफ उपनिषदिक थॉट्स। ये कहानी के तौर पे बताया गया। तो कहानी के तौर पे जब आप बताएंगे ना, तो लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। सो इट बिकम्स इजियर for a layman, for the commoners to have better understanding of Hinduism through storytelling or story form instead of complex philosophical discussions. तो वेदास, पॉलीथीज्म, उपनिषद, मोनोथीज्म, और पुराण फिर से पॉलीथीज्म। तो पॉलीथीज्म में ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आने लगती है, बहुत अलग अलग तरीके से चीजें चलने लगती हैं। तो इसी को फिर मॉडर्न एज में शंकराचार्य ने थोड़ा, अरे सॉरी, क्या नाम है, ब्रह्म समाज, राम मोहन रॉय, उन्होंने थोड़ा सा बोला कि पौराणिक हिंदुइज्म को कम करिए, ये बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा और इन चीजों पे फोकस कर रहा है, और ऐसा करते हैं कि वापस से एक बार उपनिषदिक फिलॉसफी को रिस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, मोनोथीज्म को। तो राम मोहन रॉय ने पॉलीथीज्म की बजाय मोनोथीज्म को फोकस किया, और इसीलिए उनका समाज का नाम उन्होंने रखा ब्रह्मो समाज, या ब्रह्म ब्रह्म समाज नाम रखा गया। ठीक है, वो मॉडर्न एज में आया ब्रह्म समाज। तो उन्होंने मूर्ति पूजा और इस तरह का उपनिषदिक लिटरेचर पे फोकस नहीं किया। तो पौराणिक हिंदुइज्म ना ये आइडल वर्शिप पे जोर देता है ना, मूर्ति पूजा पे, आइडल वर्शिप, और यहां पे नो आइडल वर्शिप है। ये तो आत्मा परमात्मा की बातें हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं है। और पौराणिक हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स थॉट्स पे जाएंगे तो मूर्ति पूजा नहीं होगा, अगर आप स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आएंगे तो मूर्ति पूजा होगा। बस इतना ही है ना। तो to purify Hinduism and to promote monotheism instead of Puranic Hinduism, polytheism. So Samaj tried to eradicate social evils such as sati pratha, sati, child marriages, polygamy, female infanticide, and was in favor of widow remarriages. And Keshav Chand Sen, an influential member of Brahm Samaj, तो केशव चंद सेन की वजह से ना ब्रह्म समाज टूट गया, टूटा। ठीक है, इसमें डिवीजन हो गया, क्योंकि केशव चंद सेन ने अपने माइनर बेटी, उनकी डॉटर थी, माइनर डॉटर, उनका मैरिज कर दिया कूच बिहार के महाराजा के साथ, जबकि पूरे लाइफ टाइम अपोज करते रहे चाइल्ड मैरिज का, और अपनी ही बेटी का चाइल्ड मैरिज करा दिया। तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, तो इसी वजह से ब्रह्मो समाज टूट गया। तो इसका ये हुआ नतीजा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज बना लिया, और केशव चंद्र सेन का हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद 1878 में आनंद मोहन बोस, उमेश दत्त और शिवनाथ शास्त्री, इन लोगों ने मिलकर के कलकत्ता में साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। तो ब्रह्म समाज बाद में तीन हो जाता है, ठीक है ना, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज। लेकिन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि मोनोथीज्म को प्रमोट किया जाए, क्योंकि पॉलीथीज्म की वजह से कई बार हिंदूज में आपस में डिस्प्यूट्स और झगड़े हो जा रहे थे। तो ये कि पॉलीथीज्म की बजाय मोनोथीज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मोनोथीज्म में तो ये समझा रहा है कि एकम सद विप्र बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, बाकी अलग अलग जो नाम बोलना है आप अपना अपना नाम बोलते रहिए, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म ही रहे, ये ऐसे बताया गया। ठीक है, तो ये आगे के डेवलपमेंट्स हैं, अभी देखिएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं हम 19वीं सेंचुरी में, राम मोहन रॉय और इन लोगों के आगे, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी दयानंद सरस्वती,
emphasized on Vedanta philosophy and added it to the nationalistic thoughts. Okay, added it to the nationalism or nationalistic thoughts. तो फिलॉसफी, वेदांता फिलॉसफी को नेशनलिज्म से जोड़ा गया और आजादी के बाद इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया जद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति ने, और आचार्य रजनीश, जिन्हें लोग ओशो कहते हैं, आचार्य रजनीश वर द पैट्रन्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी। तो ये कारवां बड़ा लंबा गया। तो अब आते हैं देखिए एक और डिस्कशन पे, पौराणिक हिंदुइज्म। तो हमने अब तक ये डिस्कस किया 3600 ईयर्स। मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ, रिलीजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिलीजन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो रिलीजियस माइथोलॉजी अलग होता है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स अलग होते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो 3600 ईयर्स बैक से होते हुए 2200 ईयर्स बैक, ये पूरा जो है ना डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। और फिर उपनिषद का आगे इधर 2200 ईयर्स बैक तक आते आते यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो ये पूरा कहलाता है वैदिक हिंदू धर्म, ठीक है, वैदिक हिंदुइज्म या वैदिक हिंदू धर्म। और ये ट्रेवल किया है कहां से कहां तक, पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म यहां तक, है ना। ये वेदास में पॉलीथीज्म में, पॉलीथीज्म टू मोनोथीज्म, बहुदेववाद से एकेश्वरवाद। लेकिन ये उपनिषद बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए, इसमें कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी आ गई। तो कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी की वजह से इसको सिंप्लीफाई करना था, वरना लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो सिंपलर वर्जन ऑफ वैदिक हिंदुइज्म was required. Simpler version of Vedic Hinduism was required. तो ये आया फिर दोबारा स्टोरी टेलिंग फॉर्म, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आ जाएगा। और फिर से मोनोथीज्म से होते हुए फिर से एक बार पॉलीथीज्म पे आ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल डिस्कशन को सिंप्लीफाई किया गया और स्टोरी टेलिंग फॉर्म में लाया गया। जो स्टोरी टेलिंग फॉर्म आया ना, यही कहलाया, इसी में पुराण रचे गए, पुराण, स्टोरी टेलिंग फॉर्म। और ये 36 पुराण है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में 18 महापुराण और 18 उप पुराण, ग्रेटर एंड लेसर पुराणास। तो पुराणास में जो हिंदुइज्म आया ना, इसी को बोलते हैं पुराणिक हिंदुइज्म। तो ये पार्ट पूरा खास तौर पे ज्ञान मार्ग को एम्फसाइज करता है ना, ज्ञान मार्ग। और ये जो ब्रांच आया ना, उसी का, ब्रांच का मतलब ब्रांच तो नहीं कहेंगे, सिंपलर वर्जन कहेंगे, ये एम्फसाइज करता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से मेन एम्फेसिस आता है
भक्ति मार्ग पे, पौराणिक हिंदुज्म। तो यहाँ पे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मात्मा, जीवात्मा, जगत, मोक्ष, ये सब पे फोकस किया गया और यहाँ पे वापस स्टोरी टेलिंग फॉर्म में लाया गया, तब चीजें थोड़ी आसान होती हैं। तो इसी जो ये स्टोरी टेलिंग है ना, यही पौराणिक हिंदुज्म है। तो पौराणिक हिंदुज्म और वैदिक हिंदुज्म में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। वैदिक हिंदुज्म ये ज्ञान पे फोकस करता है और इसका लिटरेचर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। और पौराणिक हिंदुज्म स्टोरी टेलिंग फॉर्म पे फोकस करता है, इसका लिटरेचर पुराण है। 36 18 ग्रेटर एंड 18 लेसर पुराणास। 18 ग्रेटर एंड 18 लेसर पुराणास, इस चीज पे फोकस है। ठीक है, तो अब समझ में आया ना कैसे कितना खूबसूरत डेवलपमेंट हुआ है हिंदुज्म का, है ना। ले इधर 3600 साल पहले से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये 2200 और फिर उसके आगे। तो पौराणिक हिंदुज्म ना पौराणिक पौराणिक हिंदुज्म ये 2200 ईयर्स बैक, और ये फाइनल शेप में कब आता है जानते हैं? गुप्ता पीरियड में। ये 1600 और 1500 ईयर्स बैक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, और ये आप लिख सकते हैं सिक्स्थ और फिफ्थ सेंचुरी कॉमन एरा। ये ऐसे पुरानी हिंदुज्म। और यहां पर आपको मिलेगा फाइनल फॉर्म ऑफ द पुराणिक हिंदुज्म। फाइनल फॉर्म, फाइनल फॉर्म ऑफ द पुराणिक हिंदुज्म, यहां पे हमें मिलता है origin of Puranic Hinduism and final form of the Puranic Hinduism. So this final form of the Puranic Hinduism took place mainly during the Gupta period और गुप्ता डायनेस्टी ऑफ एंशंट इंडिया। तो ये चेंज हमें दिखाई दे रहा है ना। पौराणिक हिंदुज्म, तो वैदिक हिंदुज्म से पौराणिक हिंदुज्म का ओरिजिन और फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और ये कंटिन्यूड है अभी तक। तो हम इस वक्त जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं हिंदुज्म में, वो वैदिक हिंदुज्म कम है और पौराणिक हिंदुज्म उसका जो सिंपलर वर्जन है ना, वो ज्यादा है। और ये फिर से आप जानते हैं, ये फिर से किस पे फोकस करेगा? पॉली पॉलीथीज्म पे फोकस होगा, बहुदेववाद, पॉलीथीज्म। तो पुराण भक्ति पे फोकस करते हैं, कि भक्ति पे फोकस करते हैं, भक्त और भगवान के बीच में लव और डिवोशन का एक बॉन्ड होता है, इस पे फोकस किया जाएगा, है ना। तो ये इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो लॉजिक नहीं है, भक्ति है। इसकी लॉजिक पे एम्फसाइज, वैदिक हिंदुज्म लॉजिक पे एम्फसाइज करता है और पौराणिक हिंदुज्म भक्ति और ये माइथोलॉजिकल चीजों पे, भक्ति एंड माइथोलॉजी पे फोकस है। माइथोलॉजी स्टोरी टेलिंग वर्जन, स्टोरी टेलिंग वर्जन में फोकस किया गया, माइथोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया गया है। हमारा सब्जेक्ट माइथोलॉजी पढ़ना नहीं है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, माइथोलॉजी में नहीं जा रहे हैं। तो आप देखिए पौराणिक हिंदुज्म में भी ना खास तौर पे दो तीन ब्रांच मिल करके पौराणिक हिंदुज्म बनता है। इसमें एक
भगवान विष्णु के वर्शिप को एम्फसाइज करेंगे। दूसरे ब्रांच में भगवान शिव के वर्शिप को बहुत एम्फसाइज किया गया। और तीसरे ब्रांच में देवियों की पूजा को एम्फसाइज किया गया है। जैसे नवरात्रा चल रहा है ना, देवियों की पूजा, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वैष्णविज्म, शैविज्म और शाक्त, ये तीन मिलकर के फुल फ्लेजेड फॉर्म ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म बनते हैं। ये सब खास तौर पे गुप्ता पीरियड में हो रहा है, मेनली गुप्ता पीरियड में हो रहा है। शुरुआत हो रही है 2200 साल पहले, और 1500-1600 साल पहले ये अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में पौराणिक हिंदुइज्म आ जाता है। तो वैदिक हिंदुइज्म से पौराणिक हिंदुइज्म, सो देयर आर टू बेसिक वर्जन्स ऑफ द हिंदुइज्म। First version, which was based more on inclined more on logic and rationality, called Vedic Hinduism, and simpler version or storytelling form called Puranic Hinduism. तो वैदिक हिंदुइज्म का लिटरेचर अलग है, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद है, और इसका लिटरेचर है पुराण, जो स्टोरी टेलिंग फॉर्म में रचे गए हैं। तो देखिए, पौराणिक हिंदुइज्म में ना नोशन ऑफ अ सेवियर होता है। इसमें पौराणिक हिंदुइज्म ने कि आपको खुद टेंशन करने का, एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके बदले कोई और एफर्ट कर देगा। मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको भगवान को एकदम दिल से आवाज लगानी है, भगवान आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं नोशन ऑफ अ सेवियर, उद्धारक। कोई उद्धार कर देगा, कोई आएगा और उद्धार कर देगा। तो जैसे अभी हमने होली थोड़े दिनों पहले सेलिब्रेट किया, और होली पे हमने देखा कि होलिका दहन हुआ, तो इसका माइथोलॉजी पुराणों में ये है कि एक राक्षस है हिरण्यकश्यप, और उसका बेटा है प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यपों की बहन है होलिका, और ये लोग भगवान विष्णु के वर्शिप को फॉलो नहीं करते। और प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा है, वो भगवान विष्णु का परम भक्त हो जाता है। तो होलिका को इससे प्रॉब्लम होती है, और वो प्लान बनाती है, कॉन्स्पायरेसी, कि मैं अग्नि जला करके अग्नि में प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, और प्रहलाद जो कि टीनेजर बच्चा है वो भस्म हो जाएगा, और जो हिरण्यकश्यप की बहन है, प्रहलाद की बुआ होलिका, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उनको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेंगे। तो वो प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाती हैं, और प्रहलाद सच्चे मन से भगवान विष्णु को याद करते हैं, बोलते हैं, हे भगवान मुझे बचा लो। और भगवान विष्णु की कृपा होती है, उद्धार कर देते हैं वो, और होलिका बुआ जो होती है उनकी, होलिका, उनका दहन हो जाता है, और प्रहलाद जो भगवान विष्णु का परम भक्त होता है वो बच जाता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है सेवियर, नोशन ऑफ अ सेवियर, उद्धारक की कल्पना है पौराणिक हिंदुइज्म में ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी है, उन्हें याद करना है। तो वैष्णविज्म एंड शैविज्म, अ ट्रेडिशन within which there was a growing emphasis on worship of a chosen deity। आप एक भगवान को चूज करिए, और उनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाइए, समर्पित हो जाइए। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर। और भक्ति पे फुल फ्लेजेड जोर है। सो व्हेन इन विच देयर वाज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ अ चोजन डाइटी, इन सच वर्शिप द बॉन्ड between Bhakt, devotee, and the God Bhagwan was visualized as one of love and devotion or bhakti. One of love and devotion और भक्ति। तो भक्ति का दो बेसिक एलिमेंट है, दो मेन एलिमेंट है। पहला एलिमेंट भक्ति का है डिजायरलेस and complete devotion before the God. Desireless
एंड कंप्लीट डिवोशन बिफोर द गॉड। भगवान के सामने इच्छा रहित होकर अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देना। डिजायरलेस एंड कंप्लीट डिवोशन बिफोर द गॉड। और दूसरा एलिमेंट है लविंग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ योर चोजन डाइटी और योर फेवरेट गॉड। भगवान के साथ मित्रवत और प्रेम का संबंध बनाना। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही। दो एलिमेंट है, डिजायरलेस एंड कंप्लीट डिवोशन, जहां इफ एंड बट नहीं लगेगा, जैसे भक्त प्रहलाद। तो डिजायरलेस एंड कंप्लीट डिवोशन ऑफ भक्त प्रहलाद टुवर्ड्स भगवान विष्णु, और डिजायरलेस एंड कंप्लीट डिवोशन ऑफ मीराबाई टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, इस तरह से। या फिर हनुमान जी टुवर्ड्स भगवान श्री राम। या फिर आप दूसरा एलिमेंट देखिए भक्ति का, दूसरा एलिमेंट है लविंग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द गॉड। तो जो लविंग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द गॉड है ना, जैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है वो लविंग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप है। या फिर सुदामा जी का और कृष्ण भगवान का जो मित्रवत व्यवहार है, मित्रवत संबंध है, वो भक्ति का दूसरा एलिमेंट है। तो इसको समझाया गया है, हमने ये पढ़ा भी हुआ है, बचपन से पढ़ते आए कि सुदामा जी थे और कृष्ण जी थे मथुरा में, और ये बालक लोग थे, ग्वाल बाल थे, और कालिंदी तीरे यमुना जी के किनारे खेलते थे। फिर धीरे धीरे कृष्ण जी के बहुत सारे दुश्मन हो गए, उनको मारने की कोशिशें होने लगी। तो श्री कृष्ण को बचाने के लिए बचाने के लिए क्या, हो तो साक्षात खुद ही भगवान थे, लेकिन फिर भी एक तरीके से बताया जाता है कि बचाने के लिए उन्हें हटा दिया गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया मथुरा से द्वारिका। द्वारिका ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, द्वारिका। और फिर बचपन के दोस्त बिछड़ गए, फिर बड़े हुए तो कृष्ण जी द्वारिका के धीश बने, राजा बने, द्वारिकाधीश। और उधर सुदामा सुदामा वो मथुरा में रह गए, और ब्राह्मण थे तो गरीब ब्राह्मण रह गए। पूजा पाठ में ज्यादा कुछ मिलता नहीं, लोग कितना ही दक्षिणा दे देते हैं पूजा पाठ में, है ना, तो ज्यादा मिलता नहीं था। तो सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, और उधर कृष्ण जी द्वारिका के राजा बन गए। तो कृष्ण जी का मैरिज हुआ, और इधर सुदामा जी का मैरिज हुआ एक स्त्री से जिनका नाम सुशीला था। ठीक है, अगर मैं गलत होऊंगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, सुशीला था। तो मैरिज हो गया और गृहस्थी आगे बढ़ने लगी, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी बार बार कि रिसोर्सेस कम पड़ जा रहे थे। तो उन्होंने एक दिन, सुशीला ने कहा कि आप एक बार कह रहे थे सुदामा जी से कि एक बार आप कह रहे थे कि द्वारिका के जो धीश हैं वो तो आपके बचपन के मित्र हैं। बोले हाँ बिल्कुल हैं बचपन के मित्र। तो कहा उन्होंने कि आप अपने मित्र से कांटेक्ट करिए, जाइए और कुछ मदद के लिए बोलिए कि रिसोर्सेज ही नहीं है घर में, कुछ बचा ही नहीं है खाना वाना बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा, सुदामा जी ने कहा कि बचपन की मित्रता है, जाऊंगा, पता नहीं पहचाने ना पहचाने। तो सुशीला ने इंसिस्ट किया कि नहीं जी आप जाइए, जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या लेके जाऊं, कुछ गिफ्ट भी तो नहीं है कि बचपन से सीधे जा रहा हूं अभी और जाके कहूंगा कि कृष्ण जी उधार दे दो, तो उनको ऑड फील होगा। तो उन्होंने कहा, सुशीला ने कहा कि घर में चावल के कुछ दाने पड़े हुए हैं, वो ले जाइए गिफ्ट के तौर पे। तो उन्होंने अपने गमछा में बांधा पोटली, चावल के कुछ दाने, और चल दिए मथुरा से द्वारका। द्वारका पहुंचे, स्काई स्क्रैपर्स, अट्टालिकाएं बोलते हैं उसको, स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े दंग रह गए, देख के एकदम मेस्मराइज्ड हो गए। राजमहल पहुंचे और द्वारपालों ने रोक लिया उन्हें, गेट कीपर्स ने, गेट बेयर्स ने रोक दिया कि कहाँ भाई, कहाँ चले आ रहे हैं यहाँ पे। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया। ऐसे ऐसे बोला ना, घर इसका रिंगटोन बना हुआ ना, बड़ा खूबसूरत लगता है। घर में सुदामा, घर पे दर पे या घर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो द्वारपाल गए, कन्हैया से कहा कि कोई आपसे मिलने आया है, कहता है बचपन का दोस्त है। बोले क्या नाम बताया, सुदामा। सुदामा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण एकदम पूरे फ्लैशबैक में बचपन में चले गए, याद आने लगी पूरी दोस्ती। और उस वक्त उन्होंने चप्पल भी नहीं पहन रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते हुए गेट की तरफ भागे, कह रही मेरा बचपन का मित्र आया है, और गले लगे, गले लग के रोने लगे।
श्री कृष्ण रोने लगे और कहते हैं ऐसे कि इतना रोए कि उनके आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। तो इस पूरे प्रक्रम में कि एक चीज समझ में आ रही है हमें कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध कैसा होगा। वो भक्त और भगवान के बीच का संबंध प्रेम और भक्ति मित्रता का होगा कि भक्त के मन में इतना भाव होना चाहिए कि भगवान भी भाव विह्वल हो जाए एकदम, और वो दौड़े चले आए आपके लिए। तो जैसे ऐसे कि भक्त अगर भगवान के बिना ना रह सकता हो तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह पाएंगे। इतना अटूट प्रेम और श्रद्धा चाहिए। तो भक्ति के दो एलिमेंट हो गए ना, डिजायरलेस एंड कंप्लीट डिवोशन बिफोर द गॉड एंड लविंग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द गॉड। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिया और एक एपिसोड भी मैंने आपको बता दिया। और हम ये भी देखते हैं कि अगर हम वैष्णविज्म की बात करें, जो पौराणिक हिंदुज्म का एक बड़ा भाग है, वैष्णविज्म और शैविज्म, और तीसरा शाक्त, जिसमें देवियों की पूजा होती है। तो वैष्णविज्म में भगवान विष्णु को के बारे में बता रहे हैं कि जब भी दिक्कत होगी, जब भी समस्याएं बढ़ेंगी, तो भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेंगे। और ये बात श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई है, कृष्ण अवतार। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण अवतार पे फोकस किया गया है। और एक श्लोक है उसमें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। हम में से बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को इस श्लोक याद रहता है कि जब जब धर्म की हानि होगी, राइटियस पाथ, कर्तव्य, राइटियस पाथ, यहाँ रिलीजन नहीं, धर्म रिलीजन नहीं है, राइटियस पाथ है, सही रास्ता। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो दुष्ट पापियों का घड़ा जब भर जाएगा उनके पाप का, तो भगवान विष्णु अवतार लेंगे और अवतार लेके दुष्ट पापियों को मार गिराएंगे और फिर से राइटियस पाथ, धर्म को रिस्टैब्लिश या पुनर्स्थापना करेंगे। तो ये बताया गया है ना श्रीमद् भागवत गीता में। So in case of Vaishnavism, cults, sampradaya developed around various incarnations of Lord Vishnu. These were the forms. ये वो रूप हैं जब भगवान विष्णु ने अलग अलग समय में अवतार लिया और जब जब धरती पे संकट आया तब तब। So these were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world. Whenever the world was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces. It is likely that different avatars were popular in different parts of the country. अलग अलग अवतार विष्णु जी के देश के अलग अलग भागों में लोकप्रिय हुए। Different avatars were popular in different parts of the country. Like Krishna avatar is more popular towards western UP and adjacent areas Rajasthan and Gujarat, while Rama avatar is more popular towards central UP अवध वाले रीजन पे। ठीक है, फिर और भी बड़े पैमाने पे। और देखिए कि ये इसके हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, नॉट माइथोलॉजिकली, तो इसकी शुरुआत जो पौराणिक हिंदुइज्म है ना, और इसमें जो भक्ति का एलिमेंट है, इसकी शुरुआत हो रही है 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। और 2200 भी हमने लिखा था, 2200 साल पहले, देखिए ना यहाँ पे लिखा ना, 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा और 2200 ईयर्स बैक। तो एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे 2200 साल पहले, उनका नाम था हेलियोडोरस। एम्बेसडर हेलियोडोरस। और ये ग्रीक एम्बेसडर थे, राजा ने भेजा था, उसका नाम था एंटियालकीड्स। तो द ग्रीक किंग एंटियालकीड्स सेंट हिज ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, and Heliodorus reached at the court of Shunga ruler of ancient India named Bhagbhadra. भागभद्रा
कि विदिशा, मध्य प्रदेश, विदिशा दरबार में आया हेलियोडोरस, भेजा था एंटियालकीड्स ने, एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ, ये कौन, Heliodorus. So when Heliodorus reached at Vidisha, and there he saw he saw people worshipping a deity called Bhagwat Vasudeva, and Heliodorus was highly impressed by the worship of Bhagwat Vasudeva, and he called himself Bhagwat, which means a worshipper of Bhagwan Vishnu. So Heliodorus becomes a worshipper of Bhagwan Vishnu, and to show respect towards Lord Vishnu, भगवान विष्णु का सम्मान करने के लिए Heliodorus at Vidisha erected a stone column called Garuda pillar, Garud Stambh, and this is the earliest evidence of origin of Puranic Hinduism, historically speaking, the earliest evidence of Puranic Hinduism. This is the first historical evidence of origin of Vaishnavism. Okay. And the central idea, as I said to or explained to you earlier, the central idea of the concept of bhakti is desireless and complete devotion before the God. Central idea of the concept of bhakti is desireless and complete devotion before the God, and to establish loving and friendly relations with the God, such as devotion of Bhakta Prahlad towards Lord Vishnu, and Arjun and Sri Krishna, or Sudama ji and Bhagwan Sri Krishna, and the Puranas. ठीक है, तो लिटरेचर, पौराणिक हिंदुइज्म का लिटरेचर क्या है? पौराणिक हिंदुइज्म का लिटरेचर पुराण है, और ये हमने लास्ट प्रीवियस डिस्कशन में भी पढ़ा था। पुराणास आर द हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट बुक्स। इसमें लॉजिक कम है और माइथोलॉजी ज्यादा है, जबकि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद में लॉजिक ज्यादा है और माइथोलॉजी कम है। So Puranas are the Hindu mythological textbooks in the simple Sanskrit. There are 18 greater or Mahapuranas and 18 lesser or Up Puranas. ठीक है, and list of greater Puranas includes तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुण पुराण, शिव पुराण, शिवस्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ये सब खास खास बड़े वाले पुराण हैं। तो विष्णु पुराण, शिव, शिवस्कंद, वायु, अग्नि compiled finally around 1500 or 1600 years back during the Gupta period। और पुराणों के 5 लक्षण है, यानी कि 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं पुराणों के। पंच लक्षणा और 5 subject matters, 5 signs or 5 signs or subject matter. So traditionally, a Purana is said to have 5 subjects or 5 signs. The primary creation of the universe, पहला क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। यहां बिग बैंग थ्योरी वोरी नहीं अप्लाई होगा, ये माइथोलॉजिकल बातें हैं, वो फिजिक्स और साइंस में आता है, ये अलग है। ठीक है, कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, ये यहां माइथोलॉजी का पार्ट है, ये साइंस और फिजिक्स नहीं है। तो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और विष्णु जी पालनहार, और शिव जी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, संहारक। और जब एक बार संहार हो जाएगा तो फिर से ब्रह्मा जी रिक्रिएट करेंगे। तो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, देन डिस्ट्रक्शन, एंड अगेन रिक्रिएशन आफ्टर डिस्ट्रक्शन, सेकेंडरी।
तो सेकेंडरी, क्रिएशन आफ्टर पीरियोडिक डिस्ट्रक्शन और अनाइलेशन। और फिर देवी देवताओं की वंशावलियां, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड पैट्रियार्क्स, द रीन्स ऑफ द मनुज, मनुवंतर, ठीक है, मनु का पीरियड, मनु, और बोलते हैं ना हम लोग मनु की संतान है, एंड दैट्स व्हाई वी आर मनुष्य, मनुष्य, ठीक है। तो मनु का काल, और फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजवंशी राजाओं के बारे में थोड़ा बहुत इतिहास। तो इसमें 4 सब्जेक्ट मैटर माइथोलॉजिकल है और एक हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री ऑफ द सोलर एंड लूनर डायनेस्टीज। एंड बीइंग माइथोलॉजिकल, पुराणास आर नॉट सो वैल्यूएबल फॉर द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल नहीं है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि इसमें माइथोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, मैंने आपको बोला ना स्टोरी टेलिंग फॉर्म है, माइथोलॉजिकल है, और माइथोलॉजिकल होने की वजह से ये ज्यादा वैल्यूबल नहीं है हिस्टोरियंस के लिए, हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत यूजफुल नहीं है। तो 5 लक्षण में से 4 माइथोलॉजिकल, एक हिस्टोरिकल, ठीक है। और फिर वैष्णविज्म पे हम एक केस स्टडी कर लेते हैं। लॉर्ड विष्णु की माइथोलॉजी के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, ये 3 खास तौर पे पुराण है भगवान विष्णु के लिए। और इसमें बोलते हैं कि लॉर्ड विष्णु लिव्स इन अ प्राइमल ओशन, लॉर्ड विष्णु लिव्स इन अ प्राइमल ओशन, क्षीर सागर, ऑन अ बेड ऑफ 1000-headed snake, शेषनाग। तो शेषनाग जी के बिस्तर पे, सहस्त्र सिरों वाले शेषनाग जी के बिस्तर पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में वो निद्रा मग्न है, लेटे हुए हैं, रिक्लाइनिंग पोस्चर में। एंड व्हेन लॉर्ड विष्णु इज इन स्लीप, जब भगवान विष्णु सोए हुए हैं, इज इन स्लीप, लोटस, उनके नाभि से कमल निकलता है। आ लोटस ग्रोज फ्रॉम हिज नावल, नाभि। और इसीलिए भगवान विष्णु का एक नाम और भी है ना, पद्मनाभ, नाभि से कमल निकलना, पद्मनाभ भगवान विष्णु। तो when Lord Vishnu is in reclining posture, a lotus grows from his navel, and in the lotus is demiurge, Bhagwan Brahma. And demiurge means the god who creates the universe. तो डेमियर्ज भगवान ब्रह्मा उस कमल पे साक्षात विराजमान होते हैं, और बीइंग अ डेमियर्ज ही क्रिएट्स द यूनिवर्स। और वो सृष्टि के चूंकि रचयिता हैं, तो वो सृष्टि रचते हैं। और वंस द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, एक बार जब सृष्टि की रचना हो जाती है, सो देन लॉर्ड विष्णु अवेक्स, फिर भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग जाते हैं, एंड ही रूल्स द यूनिवर्स, और वो उस पूरे ब्रह्मांड पे अपना रूल, अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। जगत के नाथ, जगन्नाथ भगवान विष्णु बोला जाता है इसीलिए उन्हें। एंड 4 आर्म्ड, चतुर्भुज, 4 आर्म्ड भगवान विष्णु bears in his 4 arms his 4 emblems, 4 प्रतीक चिन्ह धारण करते हैं ये चारों हाथों में। एक हाथ में शंख गदा, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में शंख गदा चक्र और कमल। और चक्र सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र है, जिससे वो दुष्ट पापियों का नाश करते हैं, संहार करते हैं, ठीक है। और वो गले में एक आभूषण पहनते हैं भगवान विष्णु, कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ आभूषण। और उनका व्हीकल जो है, वाहन, वो गरुण जी हैं, ग्रेट ईगल गरुण, ठीक है। ये लॉर्ड विष्णु की माइथोलॉजी है। और भगवान विष्णु को कृष्ण रूप में, या उनका ऐसे कह लें कि भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि लॉर्ड विष्णु's स्टेटस एज द सुप्रीम गॉड, सर्वोच्च देवता के रूप में भगवान विष्णु को बताया गया है श्रीमद् भागवत गीता में, पार्ट ऑफ भीष्म पर्व ऑफ महाभारत। So Lord Vishnu's status as the supreme god appears for the first time in Srimad Bhagavad Gita, wherein Lord Krishna अर्जुन के सामने
उपदेश देते हुए लॉर्ड कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ एज द ईवर एक्टिव गॉड हेड इनकारनेट लॉर्ड विष्णु। तो कृष्ण जी अपना भगवान विष्णु का विशाल विराट रूप अर्जुन जी के सामने दिखाते हैं। तो यहां से ये बताया जा रहा है कि कृष्ण जी वास्तव में जो कृष्ण अवतार हैं वो साक्षात भगवान विष्णु ही हैं, है ना। और फिर भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार, कहीं कहीं पे 24 भी बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन 10 मुख्य अवतार हैं, ठीक है ना। और उसमें मत्स्य अवतार से होते हुए मत्स्य कूर्म, है ना, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, फिर परशुरामावतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्ध अवतार एंड कल्कि कल्कि अवतार। और कल्कि अवतार के बारे में बताया जाता है कि ये भविष्य में भगवान विष्णु आएंगे, फ्यूचर लॉर्ड, फ्यूचर लॉर्ड विष्णु, भविष्य के भगवान विष्णु, यानी कि ये येट येट टू बी इनकारनेटेड, येट टू बी इनकारनेटेड, ये अवतार होना अभी शेष है, क्या ना। और देखिए कि फिर पुराणों में आता है कि हिंदू कॉस्मोगोनी कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो हिंदू कॉस्मोगोनी ये धीरे धीरे डेवलप किया, लेकिन मेन जो ये इसका डेवलपमेंट हुआ ना वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद हुआ है। तो हिंदू कॉस्मोगोनी विच मीन्स origin of the universe. Hindu cosmogony was slow in origin and its final form was perhaps later than the cosmogony of Buddhism and Jainism. According to the system, cosmos passes through cycles within cycle for all eternity. एक ब्रह्मांड चक्रों में चलता है, चक्र में चलता है, और हर चक्र में उपचक्र होते हैं, उपचक्र, चक्र, उपचक्र, फिर उसमें तो बेसिक साइकिल जो है ना वो बेसिक साइकिल है कल्प। कल्प एक साइकिल है जो ब्रह्मा जी की जिंदगी का एक दिन है। जैसे हमारी जिंदगी का एक दिन 24 घंटे, वैसे ब्रह्मा जी की जिंदगी का एक दिन कल्प कहलाता है। तो बेसिक साइकिल है कल्प, कल्प अ डे ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। फिर हर एक कल्प में, ठीक है ना, हर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर हर कल्प में। ध्यान दीजिएगा ना, हर दिन भगवान विष्णु सॉरी भगवान ब्रह्मा जी का जो हर दिन है एक दिन, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। फिर हर मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, और हर महायुग में 4 युग होते हैं, 4 युग, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ये तो हम लोग जानते ही हैं, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। और वैसे कल्प, मनवंतर, महायुग और युग, और फिर युग में 4, कृत, त्रेता, द्वापर, कली। तो कृत, त्रेता, द्वापर, कली जब एक पूरा होता है तो एक महायुग बनता है। जब 71 महायुग ऐसे बनते हैं तो 14 एक मनवंतर बनता है। और जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी के लाइफ का एक दिन बीतता है कल्प। ये हिंदू कॉस्मोगॉनी था। ये हमने पूरा डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड से लेकर के पूरा आगे तक का। हिंदू रिलीजन पे हमारे सनातन पे मेन फोकस रहा आज का इस सेशन पे, और इसके फिलॉसफी पे। तो ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ये तो अनऑर्थोडॉक्स या हेटेरोडॉक्स बुद्धिज्म, मेनली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट एंड जैना फिलॉसफी। ठीक है, तो चलिए आज का इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी आवर लास्ट सेशन ऑफ
संभव बैच रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। तो ये सेकंड लास्ट लेक्चर था। अगले लेक्चर में, अगले सेशन में हम लोग कंक्लूड कर देंगे उसी में जो बुद्धिज्म जैनिज्म बचा है, और भक्ति तो मैंने आपको आज पढ़ा ही दिया इसी में। तो भक्ति पढ़ा दिया, और हिंदुज्म पूरा डिस्कस कर दिया, वैदिक हिंदुज्म, पौराणिक हिंदुज्म, हिंदू फिलॉसफी पूरा डिस्कस कर दिया, और पौराणिक हिंदुज्म में भक्ति डिस्कस कर दिया। ठीक है ना? तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म और थोड़ा बहुत इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम एंड सूफी थोड़ा सा पढ़ करके ये कंक्लूड कर लेंगे अपना। तो फिर हमारा ये आर्ट एंड कल्चर का एक एक्सॉस्टिव पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।